गुड मॉर्निंग बच्चों। Morning, sir. Actually, lab was closed and I was waiting for lab technician. That's why I become late. Otherwise, I never be late for the class. Document file is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next जो assignment है आपके lab manual में, that is configure the static routing. As we know, routing is responsibility of the network layer. और network layer की जो device है that is commonly used in the form of the router. So at router level we will configure the most basic routing, that is static routing. There are some advantages and disadvantages of static routing, and those also we are going to discuss. First, let us discuss what is the assignment, what is the problem we have to do. This is a scenario in which 4 routers are connected, and one more thing you should notice here, only single route is available for every route from another router, and there are 2 LAN, and in each LAN only single end device is there by the name of PC0 and PC1. At the right hand side, the last terminating device is PC0 and PC1, sorry, and at left hand side we having the end device as name PC0. Then these are the parameters, those we have to assign to the computers and the routers, like PC0 that will be connected at one side on the port fast Ethernet 0, that I am talking about first entry into this table. So PC0 at one side, the cable will be connected to the fast Ethernet 0 port, and at the
other end, the cable will be connected to router's 0 fast Ethernet 0/0 port. That means it is talking about this cable. I hope my mouse hovering is visible to you. Yes, sir. So these are the entry given into the table. PC0 एक साइड में ये फास्ट इथरनेट 0 वाले पोर्ट से itself का जो पोर्ट है उससे कनेक्टेड है, and the other side it is connected to the router's fast Ethernet 0/0 port. Then after PC0 का IP एड्रेस जो है वो ये है, गिवन है 10.0/0/2. और इफ यू रिमेंबर द क्लास, इसकी जो क्लास है वो कौन सी हुई? अरे कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? ए? ओके, एंड उसके अंदर जो उसका मास्क होता है उसको CIDR नोटेशन से जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज /8. देन router 0 is also connected with the two devices. तो वन साइड के अंदर फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्टेड होगा जो इसका खुद का पोर्ट है, और दूसरी साइड में ये PC0 के फास्ट इथरनेट 0 पोर्ट से कनेक्टेड होगा, एंड IP एड्रेस विल बी ऑफ the router 0 will be 10.0.0.1/8. So these are the parameter which we have to configure on each devices given to it. So let us now discuss the solution. Could you confirm the solution document is in front of you? yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Static routing is the most secure way of routing, और उसका रीजन है सिक्योर होने का, क्योंकि नॉर्मली अपन ने देखा था कि जब भी अपन कोई राउटिंग स्ट्रेटजी, राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, so each device exchange their routing table or some parameter. But in case of static routing, जो कि अपन मैनुअली कमांड के थ्रू each device पे कॉन्फ़िगर करेंगे, there is no need to exchange any type of the information regarding to route. So that is the reason why it is secure. It reduces overhead from network resources. Obviously, when there is no exchange of information, it reduces the overhead or load onto the network resources in terms of processing power, in terms of bandwidth of the link, both. In this type of routing, we manually add route in the routing table of the router. It is useful when number of routes are limited. जैसा कि मैंने कहा अपने केस के अंदर सिंगल रूट है, तो in that case it is efficient manner to configure the routing through the static routing mechanism. Like other routing method, static routing has also its advantage and disadvantage. Advantages are it is easy to implement, it is secure, and there is no overhead on resources. And disadvantage, it is only suitable for small network and the stub network. The stub network which having only single route is called stub network. Second, if a link fail, it cannot reroute the traffic. और उसका रीजन ये है कि स्टैटिक रूटिंग के अंदर नॉर्मली अपन सिंगल रूट स्टैब्लिश करते हैं,
अल्टरनेट रूट को स्टैब्लिश नहीं करते हैं. हाउएवर देयर आर कमांड थ्रू विच वी कैन establish the alternate route as well. So if there is single route, then if that fail, the alternative path cannot be taken, because यहाँ पे अपन कह सकते हैं there is no artificial intelligence or no self healing procedure available. This is same table as we have discussed in previous document, which state about our problem and the configuration parameter. Now how we will do or configure these parameter, we are moving towards them. सबसे पहले अपने को IP एड्रेसेस PCs को प्रोवाइड करने हैं जो कि टेबल के अंदर गिवन है. तो वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे अपन PC को IP एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं. तो दोनों PCs को, PC 0 एंड 1 को, जो भी इस टेबल के अंदर राउटिंग IP एड्रेसेस प्रोवाइडेड हैं वो एड्रेसेस अपन प्रोवाइड करेंगे. And that I am not discussing here. I mean to say, let me enlarge as possible as I can this table. तो सबसे पहले अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो है PC 0 को ये IP एड्रेस प्रोवाइड करना है 10.0.0.2. ये आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी दे सकते हैं और स्टैटिक जो GUI है वहां से भी दे सकते हैं. उसके बाद लास्ट लाइन जो इस टेबल की है PC 1 का IP एड्रेस जो है वो देना है 20.0.0.2/8, जो कि डिफॉल्ट मास्क होगा. इसका अपने आप आ जाएगा जब आप टैब प्रेस करेंगे. अब अपन आते हैं रूटर पे. रूटर के टर्मिनल्स कॉन्फ़िगर करने अपने को. तो फर्स्ट वी हैव टू इनेबल, दैट मीन्स इनेबल मोड में जाना है रूटर के. देन टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है रूटर के. सो फॉर दैट कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड इज देयर. और अपने सामने हैश प्रॉम्प्ट होगा अगर अपन ऐसा करेंगे तो. नाउ क्वेश्चन इज, वी आर नाउ on configuration mode of the router, but which port we need to configure? So for that purpose, to answer this question, we have to provide the name of the port or interface. So इसके लिए कमांड है इंटरफेस फास्ट इथरनेट, देन पोर्ट का नाम 0/0 को अपन कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. उसको अपन पहले IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे क्योंकि टेबल के अंदर गिवन है जो भी एड्रेस वो अपन प्रोवाइड करेंगे. सो फॉर दैट पर्पस कमांड है अपने पास IP एड्रेस, और टेबल के अंदर अपने को गिवन एड्रेस जो है वो 10.0.0.1 है, वो अपन ने दे दिया. और जो अपना मास्क है 255.0.0.0 डिफॉल्ट मास्क जो है वो अपन ने यहाँ पे दे दिया है अलोंग विद IP एड्रेस. To switch on the router, no shutdown command has been given. Then अब अपना पोर्ट का, इस पर्टिकुलर पोर्ट का काम पूरा हो गया. So we have to exit from here by exit command, and now again we are at configuration mode of same router जिस पे अपन ने क्लिक किया था. अब अभी तक अपन ने इस रूटर का, कौन से रूटर का, इस वाले रूटर का ये वाला पोर्ट कॉन्फ़िगर किया है. जो पोर्ट PC 0 से कनेक्टेड है उसको अपन ने IP एड्रेस प्रोवाइड किया है. बट इसी रूटर पे अपने पास दूसरा कनेक्शन भी अवेलेबल है, बट दैट इज ऑन सीरियल पोर्ट, ऑफ दिस रूटर. नाउ क्वेश्चन में भी देयर कि सीरियल पोर्ट कब काम में आता है.
जब अपन टू रूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो सीरियल पोर्ट अपन काम में लेते हैं, या अपन ISP से कनेक्ट होते हैं टू एक्सेस द इंटरनेट, देन ऑल्सो वी कनेक्ट आवर रूटर टू द सीरियल पोर्ट थ्रू द सीरियल पोर्ट। जबकि एंड डिवाइस से जब अपन कनेक्ट हुए तो फास्ट ईथरनेट पोर्ट अपन ने काम में लिया है रूटर का, और जब अपन रूटर से कनेक्ट करते हैं रूटर को तो सीरियल पोर्ट जो है वो यूज में लिया है। तो अभी अपन दूसरा पोर्ट जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे, सीरियल इंटरफेस। जब भी अपन ISP से कनेक्ट होते हैं, अपना रूटर ISP से कनेक्ट होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो वो उन क्लाइंट्स को क्लॉक फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। सो फॉर दैट पर्पस देयर विल हियर यू विल फाइंड 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर दैट नीड टू बी कॉन्फ़िगर। 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर है जो अपन कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड वो पैरामीटर्स हैं क्लॉक रेट एंड द बैंडविड्थ, कि अपन इस पर्टिकुलर रूटर को कितनी बैंडविड्थ और कितनी क्लॉक रेट जो है वो असाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ISP के साथ पास में बहुत सारे अपन कह सकते हैं कि क्लाइंट्स होते हैं और वो उनको प्लान के अकॉर्डिंग बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। तो ये सीरियल इंटरफेस के थ्रू जो है कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नीचे कमांड आपको दिख रहा है, अपन डिस्कस करते हैं। Serial interface need 2 additional parameters, clock rate and the bandwidth. Every serial cable has its 2 ends. One is DTE and DCE. Serial cable के 2 टाइप के एंड होते हैं. These parameters are always configured at DCE end. Now what is meaning of DTE? Data terminating equipment. DTE devices प्रोड्यूस द डेटा, जैसे अपना PC हो गया, फैक्स मशीन हो गई, ठीक है, एंड डिवाइस जितनी भी है वो DTE डिवाइसेस कहलाती है। दोज डिवाइसेस विच प्रोड्यूस द डेटा और दोज डिवाइसेस विच आर एंड डिवाइसेस आर कॉल्ड डेटा टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, DTE। तो अगर अपन सीरियल केबल को DTE से कनेक्ट करना चाहते हैं तो अपन सीरियल केबल का DTE वाला पार्ट यूज करेंगे। यानी अगर अपन PC या फैक्स मशीन या कोई और डेटा प्रोड्यूसिंग डिवाइस है उससे कनेक्ट करेंगे तो DTE वाला अपन जो है पार्ट यूज करेंगे। और सेकंड जो है दैट इज DCE, डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। जिस डिवाइस के अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है या जो कम्युनिकेशन के काम में आती है डिवाइस जो कि इन बिटवीन डिवाइसेस हैं, वो जो है DCE कहलाती है। द डिवाइसेस विच हैविंग द ट्रांसमीटर और रिसीवर ओनली दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, DCE। सो ये सीरियल कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं 2 टाइप्स की। If you want to view the parameters related to any serial port, there is a command show controllers serial 0/0/0। तो ये उसके कुछ पैरामीटर्स है उनको शो कर देगा, like which type of hardware it is being used and clock rate, but this is not part of this configuration assignment। जो कॉन्फ़िगरेशन अपने को करना है वो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। अभी अपने को
राउटर 0 का सीरियल वाला पोर्ट जो है वो उसको कॉन्फ़िगर करना है. सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड, देन कौन सा टर्मिनल अपने को कॉन्फ़िगर करना है, उस इंटरफेस का नेम अपने को प्रोवाइड करना है. जैसा कि अपन ने पहले फास्ट ईथरनेट दिया था, इस बार अपने को सीरियल 0/0/0 वाला इंटरफेस है वो कॉन्फ़िगर करना है. तो उसका नाम अपन ने दिया है विद द कमांड इंटरफेस. तो अभी जो अपना कंट्रोल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है वो सीरियल 0/0/0 पे चला गया है, सीरियल 0/0/0 पे. अब अपन यहाँ पे जो भी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस पोर्ट ओनली. सो सबसे पहले अपने को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है जो कि टेबल में गिवन है, और उसका मास्क भी गिवन है. तो वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 192.168.0.253. लेट्स मूव बैक टू दी टेबल. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे उस राउटर 0 वाली जो रो है उसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.253/30, यानी सबनेट मास्क के अंदर 31 हैं. तो जब इन 31 को कोरस्पॉन्डिंग डेसिमल में ऑक्टेट बाई ऑक्टेट कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो अभी अभी जो अपने कमांड के अंदर मास्क लिखा है वही वाली वैल्यू है. अगेन अपन अगर वहीं पहुंचते हैं ये वाली है. तो ये आईपी एड्रेस तो एज इट इज है वहां पे लिखा हुआ, बट CIDR नोटेशन में अपना मास्क है तो उसको अगर अपन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 252 लास्ट में आएगा, क्योंकि राइट हैंड वाले 2 1s हैं वो 0 रहेंगे, और यानी 3 कम हो गए, 255 में 3 कम हो गए, 252 रह गए. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन. Yes. अगेन नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि क्लॉक रेट अपने को सीरियल इंटरफेस के लिए डिफाइन करनी पड़ती है 64,000. देन बैंडविड्थ अपन ने दे दी, ठीक है. नो राउटर को अप कर दिया है, नो शट डाउन, देन एग्जिट, एंड देन अपना आ गया है हैश प्रॉम्प्ट. अब जब अपन ने एक रूटर का सीरियल पोर्ट कॉन्फ़िगर कर लिया, देन सेम प्रोसेस अपने को दूसरे रूटर्स के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, बट बाय कंसीडरिंग देयर रेस्पेक्टिव आईपी एड्रेसेस. तो मैं अभी थोड़ा सा आपको पैकेट ट्रेसर पे सिनेरियो बता देता हूँ, फिर मैं ये फाइल अपलोड करूँगा टीम पे और वहाँ से आप खुद करेंगे. अगर कोई इश्यू होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए. अभी तक अपन ने राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं की है, अभी तक अपन रूटर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. राउटिंग इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ कमांड, तो वो भी हो जाएगा. 1 मिनट होल्ड.
यहाँ पे पावर नहीं आ रही है इसमें 114 में नहीं, आपने तो कहने के अंदर जो लैपटॉप पे बोला जाएगा ना उसमें क्यों नहीं आ रही और प्लग में वेट करना बच्चों, पावर नहीं आ रही है, वो आ रही है। पैकेट ट्रेसर इंटरफेस इज विजिबल टू यू बच्चों? Yes, sir. ओके तो ये इस तरीके से आपको पहले सिनेरियो क्रिएट करना है। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको 1841 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सीरियल इंटरफेस नहीं मिलेगा, तो उसका मैं तरीका बताता हूं। और दूसरे रूटर में हाउएवर मिल जाएगा, बट ये भी अपने को जान लेना चाहिए कि इसमें कैसे अपन कर सकते हैं। ये लिया वन, मैंने यहाँ से नेटवर्क डिवाइस देन रूटर सेलेक्ट किया एंड 184 सेलेक्ट किया है, ये अपन ने ले लिया 1841। डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं होता है, इसको अपने को इंसर्ट करना पड़ेगा, यानी ऐड करना पड़ता है। मैंने राउटर पे क्लिक किया है तो उसका हार्डवेयर फिजिकल व्यू विजिबल है क्या आप लोगों को? Yes. अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सीरियल इंटरफेस नहीं होता है। कैसे पता लगेगा? जब मैं कॉन्फ़िग मोड में जा रहा हूँ, इंटरफेस के अंदर क्या विजिबल है? फास्ट इथरनेट 00 एंड फास्ट इथरनेट 01, दो ही पोर्ट विजिबल है ना? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे सीरियल पोर्ट विजिबल नहीं है और अपने को रिक्वायरमेंट है सीरियल पोर्ट की। तो उसके लिए अपने को करना क्या है? फिजिकल टैब में जाना है
उसके बाद WIC1T को प्रेस करना है। उसके बाद एक बार रूटर को स्विच ऑफ करना है। जो ऊपर उसका फिजिकल व्यू है बैक साइड का, रूटर के बैक साइड का, उसके अंदर एक ग्रीन जो है पावर का बटन विजिबल होता है, उसको क्लिक करेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। वो ग्रीन जो है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स अभी अपना रूटर जो है वो स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ होने के बाद राइट हैंड साइड बॉटम के अंदर अपने को सीरियल पोर्ट दिख रहा है एक, उसको ड्रैग करना है और जो स्लॉट है यहीं पे वहां पे ड्रॉप कर देना है। ये एक सीरियल पोर्ट लग गया। अपने को दोनों दो चाहिए तो आप दो लगा सकते हो। ये मैंने दूसरा यहां लगा दिया। अब मैं इसको स्विच ऑन कर देता हूं और फिर से चेक करते हैं कि सीरियल पोर्ट आया या नहीं आया। डिवाइस बूट हो रही है और एट द सेम टाइम सीरियल पोर्ट भी अपने को विजिबल हो गए हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. तो इस तरीके से अगर सीरियल पोर्ट नहीं होता है डिवाइस के अंदर, रूटर के अंदर, तो अपन इस तरीके से ला सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो अब आप लोगों को ये सिनेरियो बनाना है जो, और अभी तक जो अपन ने प्रोसेस किया वो कमांड्स जो है वो रूटर पे एग्जीक्यूट करने हैं, उनके सीरियल पोर्ट जो है वो कॉन्फ़िगर करने हैं। और जो मैनुअल है वो मैंने अपलोड कर दिया फाइल सेक्शन के अंदर। तो आप एक तरफ या तो मोबाइल के अंदर उसको ओपन कर लीजिए जो टेक्स्ट मैटर है, और उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। ठीक है, आधे घंटे बाद मैं आपका चेक करता हूँ कि आपका कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद जो है वो राउटिंग वाला भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें गिवन है मैनुअल के अंदर स्टैटिक राउटिंग के प्रोसेस भी गिवन है, वो भी आप कर लेना। मैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, और अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप अपना काम स्टार्ट करें। सर जो रेड वायर है वो DTE है या फिर DCE? ये घड़ी वाला है, DCE। ओके सर।
यस बच्चों, आहन सिंह चरक। Yes, sir. यस बच्चे, शो मी योर प्रोग्रेस, शेयर योर पैकेट ट्रेसर। ओके, या यू कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट किए हैं क्या? म्यूट हो आहन, आप क्या कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या? सर वो पहले गलती से मैंने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में यस दबा दिया था तो उसकी वजह से राउटर चल नहीं रहा था। अभी सर फिर वो कर हैंग हो गया था। सर को अभी वापस डालूंगा, फिर वापस सर स्टार्ट किया, वापस डिलीट करके वापस रीइंस्टेट किया। चलो ठीक है, कंटिन्यू करो, और उसके बाद राउटिंग वाला भी करना है आपको। यस सर। ओके, आकाश वर्मा। Yes, sir. यस, शेयर योर पैकेट ट्रेसर। सर शो हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हुआ। सर हुआ? हाँ हाँ सर, ओके, अभी ग्रीन। अभी सर मैं कर रहा हूँ सर, राउटर ठीक 3 है, का मैं लिख रहा था। ठीक है, ठीक है। हाँ, ग्रीन हो गए हैं आपको, लगता है सही है, यस सर। कनेक्शन सही है। चलो ठीक है, कंटिन्यू करो, कोई यस दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। ओके ओके। अक्षत संगाई। Yes, sir. यस अक्षत, शेयर करो पैकेट ट्रेसर। सर अभी मैं कर रहा हूँ, मतलब अभी कोड लिख रहा उसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ CLI पे, राउटर 2 पर हो दिखा दो। सर दिख रही है स्क्रीन? वेट करो, हाँ आ रहा है अभी, हाँ यस यस। सर अभी राउटर 2 कर रहा हूँ, अभी इतना ही कर ठीक है, पाया आगे। ओके ठीक है, कंटिन्यू करो। अक्षय गुप्ता। Yes, sir. Presenting. हाँ Sir, is it visible? हाँ, विजिबल है। हाँ सर, तो राउटर 3 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अभी स्टैटिक ठीक। राउटिंग शुरू करना है। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो सर, नो सर। ठीक, ओके कंटिन्यू करो। गुड। अंशुल किलरानी।
अंशुल खिलरानी, अनुराग तोमर, यस सर। एक मिनट अनुराग, मैं आपको प्रेजेंटर बना दूं। हाँ, सर श्योर है हाँ, सर, राउटर 2 के लिए कर रहा था। एक बार डायग्राम दिखा दो इसको मिनिमाइज करके। ठीक है, कंटिन्यू करो। भूमिका, यस सर। यस बच्चे, शेयर योर पैकेट ट्रेशर फाइल। जस्ट अ मिनट। सर राउटर 0 के लिए भी करा था, 1 के लिए कर रही हूँ। ये तो आपने डाउनलोड किया हुआ है, खुद नहीं बनाया भूमिका। नहीं सर, ये बनाया था आपको से देख के। नहीं नहीं, ऐसे मत किया करो, ये डाउनलोड किया है आपने। ऊपर टाइटल से ही पता लग रहा है ना, blank.pkt। खुद बनाओ, ऐसा मत करो। कमांड एग्जीक्यूट किए हैं इसमें कुछ? हाँ सर, राउटर 0 के लिए एग्जीक्यूट करे थे अभी। this, ठीक है कंटिन्यू, बट जो करें आप खुद करें। ठीक है सर। चिराग अग्रवाल, यस सर। वेट करना चाहिए। Sir, screen is visible, sir. हाँ, Sir, I have configured the default routing. Wait, I have configured till here. ओके गुड, ओके They have अब तो configured राउटर the 3। static routing. I have ओके to ping and check it. okay, then after check one ping command through the ping command and the pdu। Okay, continue। चिन्मय, वही सबसे पूछ रहा है। चिन्मय कहाँ गायब हो गया? हर्ष अरविंद, हर्ष अरविंद, हर्ष शुक्ला,
हर्ष शुक्ला, आहन म्यूट कर लो अपने आप को बच्चे। ओके, हर्ष शुक्ला, करण अग्रवाल, यस सर। स्क्रीन शेयर सर। विजिबल है। Sir, I have configured the routers and the computers, but it's failing. Sir, she failed. एक बार एक काम करना, पिंग करना रूटर को, मीन्स आप ट्राई कर लो। हाँ सर। पिंग कमांड के थ्रू आपका नेबर रूटर है उसको करो, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद वाले को करो। मीन्स आपको डीबगिंग करनी है कि कौन से चैनल में प्रॉब्लम आई है। ठीक है सर, करके देखता हूँ। ठीक है करण। करण मनन, यस सर। वेट सर, प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन। सर स्क्रीन आ रही है? हाँ सर पैकेट ट्रेसर। यस सर। तो राउटिंग हो गई क्या इनकी? सर राउटिंग सेटअप तो किए, कॉन्फ़िगरेशन में प्लस नेटवर्क्स, ये राउटर 1 का है, ये राउटर 2 का है एंड 3 का, लेकिन अभी कमांड्स रन नहीं करी सर अभी, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है उसमें। अभी वो सेटअप कर रहा था मैं अभी। ठीक है करो, कंटिन्यू करो करण। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो पीडीयू फेल आ रहा है और पिंग भी नहीं हो रहा है, मैंने सारे स्टेप्स फॉलो तो कर लिए। सर लास्ट राउटर से लास्ट पीसी में जाने में फेल हो रहा है। लास्ट राउटर से लास्ट पीसी में वो नहीं जा रहा है, बाकी हर जगह पिंग वाली कमांड चल रही है। अच्छा, मतलब लास्ट रूटर तक जा रहा है ऐसा? यस सर, मतलब पीसी टू रूटर तक जा रहा है, बस वो लास्ट वाले रूटर से आगे नहीं बढ़ रहा। सिमुलेशन में दिख रहा है, उससे निकल नहीं पा रहा। ओके यस सर, निकल नहीं पा रहा। एक बार कोशिश करो, मैं फिर आता हूँ आपके पास। उसका है तो राउटिंग वगैरह में ही इशू है, मैपिंग का। एक बार चेक करता हूँ। कशिश, यस सर। हाँ सर, स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। हाँ सर पीसी वाले पोर्ट्स अभी भी डाउन आ रहे हैं, बाकी तो ये ग्रीन हो। ये केबल गलत यूज कर लिया आपने। ये डैश वाली करो, सेकंड वाली। अच्छा, डैश वाली। हाँ, फिर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करो। ओके सर। मानवीर, यस सर।
सर कॉन्फ़िगर कर लिया पर वो फेल हो रहा है सर। वो सेम ही आ रहा है क्या, लास्ट से आगे नहीं निकल रहा है ऐसा? सर पिंग करके देखा था पर पीसी नहीं हुआ वो। ठीक है, एक बार आप अपनी तरफ से ट्राई करें, फिर मैं आता हूँ आपके पास। मोहम्मद कैफ। हेलो। यस सर। हाँ कैफ, स्क्रीन शेयर करो। मानवीर आप अनशेयर कर लो। सर अभी मैंने पहला वाला राउटर कॉन्फ़िगर करा और ये मैं बात कर रहा था, थोड़ा डिले हो गया था स्टार्टिंग में। अच्छा ठीक है, करो, कंटिन्यू करो। उर्वी पंकज तिवारी। एक्सक्यूज मी सर। सर इनिशियल दिस साइड सर नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे उस समय, अभी सही हो गया। कैन आई शो यू माय वर्क राइट नाउ सर? नो, वेट नाउ। यस सर, ओके। उर्वी पंकज। प्राजय। कशिश म्यूट कर लो अपने आप को। प्राजय प्रसंत। रोहित रॉय। यस सर। आपके तो शायद इश्यू आ रहा था ना, अभी आपने ही बोला था ना, वो यस लास्ट सर, वाला एक बार पिंग। स्क्रीन शेयर ठीक है, कर दूं तो मैं दिखा सकता हूँ सर क्या इशू आ रहा है। वो सिर्फ नेबर वाले राउटर्स तक जा रहा है सर, लाइक नेबर के आगे नहीं जा पा रहा वो। जस्ट सर स्क्रीन विजिबल है? वेट करो। हाँ आ गया। विजिबल है सर। ये जब ये पीसी से इस राउटर तक तो सर सक्सेसफुल हो जाएगा, हो गया। बट अगर मैं इस पीसी से इस राउटर में भेजूंगा तो ये फेल आ जाएगा। मतलब सिर्फ नेबर्स तक जा रहा है, किसी भी नेबर तक चला जाएगा, राउटर टू राउटर भी चला जाएगा, बट वो नेबर से आगे नहीं जा पा रहा है। पता नहीं क्या इशू आ रहा है। राउटिंग सेम कर सर दिया? यही हो रहा है सर। राउटिंग कर दी क्या? यस सर, राउटिंग कर दी सर। सर मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, वैसे राउटिंग हो चेक सकता कर है। लो, और स्क्रिप्ट में हो सकता है कुछ टाइपिंग sir. मिस्टेक हो गई हो, तो वो भी चेक कर लेना Yes, अपना sir, लॉजिक वो लगा के, लॉजिक Yes, लगा sir. के। यस सर, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ओके ठीक ठीक, ओके। रुबान। यस सर। यस रुबान, एक मिनट, शेयर करो। सर इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर तो कॉन्फ़िगर कर लिया मैंने, और वही रोहित जैसा मेरा भी प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब मैसेज यहाँ से यहाँ तक भेजता हूँ नेबर तक तो वो चले जाता है, सक्सेसफुल बताता है, लेकिन नेटवर्क से बाहर नहीं निकल रहा है।
हाँ सर, पीसी टू पीसी नहीं हो पा रहा। तो एक बार उसको स्क्रिप्ट को भी देख लो, उसमें कोई गलती नहीं हो, है ना सर? क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप ये चीज़ तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ सर, अगर अपन वापस से फॉरवर्ड एक बार करें। ट्राई कर लेते हाँ हाँ ठीक है ओके। साहिल, यस सर। साहिल शेयर करो। सर वो स्टैटिक रूट के आगे का करना है, अभी सारे राउटर कॉन्फ़िगर हो गए। ठीक है कर लो। ओके सर। शिवम गुप्ता। सर वो स्टैटिक वाला रहता है, बाकी कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने। एक बार दिखा हाँ दो। सर दिखा दो। सर ये कॉन्फ़िगर हो गए सारे सर। ठीक है, राउटिंग कर स्टैटिक लो। वाला। ठीक है शिवम। इनकी बुक्स महंगी नहीं आती डीएवी वालों की। डीएवी वालों की मतलब कि 2500 या बुक कॉपी सब आ रहा है। नहीं डीएवी वालों ने बुक्स ना उनके रीजनल रेट है, जैसे एनसीईआरटी के। शिवम म्यूट कर लो। श्रेय बाना। श्रेय बाना। सुशांत देव सिंह। सुशांत देव सिंह। तन्मय। यस सर। यस सर। तन्मय आप शेयर करो स्क्रीन। सर कौन सा तन्मय? तन्मय सिंह चीलवाल। हाँ जी सर। सर मैं राउटर 2 कॉन्फ़िगर कर रहा था। एक्चुअली मेरे को डीसी केबल का मैं कनेक्शन भूल गया था कैसे करते हैं, तो मैं उस पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट हो गया मेरा। ठीक है, कंटिन्यू करो। ओके सर। सर अभी हमारी सीजीएम की क्लास है एक्चुअली। ओहो ठीक है। तन्मय थरीजा आपका क्या प्रोग्रेस है? सर मेरा राउटर मेरी स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन से रहती है और राउटर 3 रहता है सर। मैं राउटर 2 तक कॉन्फ़िगर कर लिया। चलिए ठीक है। फटाफट अगर नहीं क्लास है तो लीव कर सकते हैं बच्चों, उसको डिस्टर्ब मत करो। ओके सर। साहिल आपका भी बाद में देखेंगे। सर अभी तो दिखाया था। नहीं सॉरी साहिल नहीं, वो कौन एक बीच में नेटवर्क इशू वाला बंदा था ना सर अंशुल। हाँ अंशुल। ये सब मेरा हो गया और कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, मैं ये असाइनमेंट अपलोड करूंगा, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और जो इश्यू है वो मैं करके देखता हूँ और उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर।